Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Krishna Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram Ram, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna,
हरे कृष्णा प्रभु जी। आत्माराम प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सतीश प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विमल जी, अभिनव, प्रणव जी, धनंजय, पीयूष एंड कुंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स्टार्ट भगवद गीता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं ततो जयामुदीरयेत्। ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूते श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavad Gita, as it is, chapter 3, Karma Yoga, text number 4. Atmaram Prabhu, please begin. हरे कृष्णा प्रभु जी। टेक्स्ट 4 ना कर्मणामनारम्भन् न कर्मणामनारम्भान् नाइष्क्रमण पुरुषोऽश्नुते नाइष्कर्मण्य पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिं गच्छति Translation. Not by merely abstaining from work can one achieve freedom from reaction, nor by renunciation alone can one attain perfection. Purport. The renounced order of life can be accepted when one has been
purified by the discharge of the prescribed form of duties, which are laid down just to purify the hearts of materialistic men. Without purification, one cannot attain success by abruptly adopting the fourth order of life, sannyasa. According to the empirical philosophers, simply by adopting sannyasa or retiring from fruitive activities, one as good as Narayana. But Lord Krishna does not approve this principle. Without purification of heart, sannyasa is simply a disturbance to the social order. On the other hand, if someone takes to the transcendental dental service of the Lord, even without discharging his prescribed duties, whatever he may be able to advance in the couch is accepted by the Lord Buddhi Yoga. सा अल्पम अप्यास्य धर्मास्य तरायते महोतो भायत. Even a slight performance of such a principle enables one to overcome great difficulties. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Ram Prabhu, thank you very much. Discuss now. So, कल हम लोग पढ़ रहे थे, कृष्ण बता रहे हैं कि दो प्रकार के व्यक्ति समाज में देखने को मिलते हैं. लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा. दो प्रकार के निष्ठा के साथ लोग मिलते हैं. एक तो जो सांख्य में विश्वास करते हैं, सांख्य योग में ही चलते हैं, या फिर दूसरे टाइप के होते हैं जो केवल रिलीजियस प्रिंसिपल को अपनाते हैं, सांख्य फिलोसफी में बिलीव नहीं करते. लेकिन प्रभुपाद हमको कल समझा कि दोनों का इम्पोर्टेंस बहुत ही है और दोनों इंटर रिलेटेड है एक दूसरे पे, और दोनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं कि फिर वो बताना शुरू कर रहे हैं कि कर्म क्या होता है, कर्म कैसे करते हैं. तो बोल रहे हैं कि हम लोग अगर कर्म को छोड़ दें, हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो है, हमारा जो कर्म हमको दिया गया है बाय आवर नेचर, जो कर्म हम लोग अडॉप्ट किए हैं हम लोगों का नेचुरल टेंडेंसी की वजह से, उसको छोड़ने से हम लोग कभी भी पाप मुक्त नहीं हो सकते. और हम लोग ऐसे ही अगर संन्यास ले लें, छोड़ छाड़ के सब कुछ चले जाएं कहीं पे, तब भी हम लोग परफेक्शन को अचीव नहीं कर सकते. कृष्ण बोल रहे हैं किनको? अर्जुन को. तो इसलिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो है, पहले जमाने पहले क्या होता था, हमारे जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें गुरुकुल सिस्टम होता था. गुरुकुल सिस्टम में पहले 5 साल के आयु में बच्चों को छोड़ दिया जाता था गुरुकुल में, और गुरुकुल में गुरु जो है सारे शिष्यों को वो ऑब्जर्व करते थे, ज्ञान भी देते थे, ज्ञान देते देते वैदिक लिटरेचर स्टडी करते थे, और उसमें वो ऑब्जर्व करते थे कौन बच्चा किस गुण में है. तो अकॉर्डिंग टू द गुण फिर उनको कर्म दिया जाता था, प्रिस्क्राइब ड्यूटी. फिर गुरु उनको प्रिस्क्राइब करते थे. जिनका गुण ब्राह्मण जैसे है उनको बोल दिया जाता था कि आप ब्रह्मचारी बनो, आप यहीं पे रहो, ब्रह्मचारी बनो और ब्राह्मण का काम करो. और जिनका गुण थोड़ा पैशनेट होता था उनको क्षत्रिय का गुण दिया जाता था. ज्यादा हेवी होता था पैशन, मोड ऑफ पैशन जिनके अंदर भी हेवी होता था उनको क्षत्रिय, उनको बोला जाता था अब जाके या तो कहीं पे सेनापति बनो, अगर राजा का पुत्र है तो राजा बनो, नहीं तो कहीं पे सेना में ज्वाइन करो. तो क्षत्रिय का
कार्य करो। अगर किसी के अंदर पैशनेट और होता था और थोड़ा तमोगुण भी होता था, तो उनको वैश्य वृत्ति दिया जाता था। वैश्य वृत्ति में उनको बोला जाता था आप कृषि गोरक्षा वाणिज्य करो, कृषि करो, गोरक्षा करो और वाणिज्य करो, व्यवसाय। और जिनका गुण होता था बिल्कुल इग्नोरेंस में, तो उनको शूद्र का काम दिया जाता था। वो सब सारे अदर जितने सोसाइटी के वर्ण हैं उनको सेवा करते थे। तो ये 4 वर्ण का इम्पोर्टेंस बहुत ही होता था, लेकिन हम लोग उसको धीरे धीरे डिग्रेड कर दिए, हम लोग उसको एक्सप्लॉइट किए। लेकिन 4 वर्ण का जो सोसाइटल डिवीजन हुआ था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और सब सारे व्यक्ति अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी में रहते हुए भगवान की सेवा में नियोजित होते थे, करते थे भगवान की सेवा। इवन शूद्र भी करते थे, वैश्य भी करते थे, जिनका जैसे सेवा में अपने आप को यूज कर सकते हैं वैसे ही करते थे। तो जैसे ब्राह्मण हुए तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, वो वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे, दूसरों को सिखाएंगे। क्षत्रिय कैसे भगवान की सेवा करेंगे, वो दूसरों को रक्षा करेंगे, धर्म का स्थापना करेंगे जहाँ पे धर्म नहीं है। तो ये उनका स्वभाव होता था। और वैश्य क्या करते थे, कृषि कर रहे थे, गोरक्षा वाणिज्य करते थे, सबको वो फूड सप्लाई करते थे, दूध, मिल्क, फ्रूट सब कुछ सप्लाई करते थे और वाणिज्य भी करते थे। और शूद्र जो है वो बाकी जितने वर्ण हैं उनके सेवा में लिप्त रहते थे, वो भी भगवान की सेवा होता था, तो भगवान की सेवा में भी वो लोग लगे रहते थे। तो ये पहले जो था बहुत सिस्टमेटिकली था, लेकिन हम लोगों ने उसको डायरेक्ट एक्सप्लॉइट करने लगे, तो सोसाइटी में फिर केओस शुरू होने लगा। लेकिन आजकल हम लोग अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी में है नहीं। कलयुग में कलो शूद्र संभवा शास्त्र में बताया गया है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर इन तमोगुण, मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो इसलिए हम लोगों को शूद्र कहलाया गया, लेकिन कलयुग में हम लोग शूद्र से भी नीचे रहते हैं। शूद्र का जो क्वालिटी होना चाहिए उससे भी नीचे रहते हैं, हम लोगों का हालत बहुत बुरा है। तो इसलिए क्योंकि हम लोगों का अभी गुरुकुल सिस्टम रहा नहीं, गुरु का मार्गदर्शन रहा नहीं, ना हमको कोई ऑब्जर्व करता है हमारा गुण क्या है, कैसे होना चाहिए, हमको उस प्रेस्क्राइब ड्यूटी में स्थापित करे, वो है नहीं। लेकिन पहले था ये वैदिक सिविलाइजेशन। तो अभी हम लोगों को कैसा प्रेस्क्राइब ड्यूटी मिलता है, फोर्सफुली हम लोगों के ऊपर थोप दिया जाता है, आपको इंजीनियर बनना है। जो व्यवसायी होते हैं बोलते हैं आपको व्यवसाय करना है, अपने बेटे को लगा देते हैं, लेकिन उसका गुण क्या है हमको पता नहीं, लेकिन उसको थोप दिया जाता है। तो हमारा गुण अगर वैसे नहीं है, हम लोगों को कोई काम थोप दिया जाएगा तो वो काम हम लोग ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये हम लोग कई बार देखे भी हैं हमारे बच्चों में, आईआईटी के बच्चों में भी, जिनके पास उनको इंटरेस्ट ही नहीं है इंजीनियरिंग फील्ड में, लेकिन उनको थोप दिया जाता है कि आपको आईआईटी में जाना है। क्यों आना है? क्योंकि आईआईटी में मोटा अंक का सैलरी मिलता है जब पढ़ने के बाद, तब आईआईटी में ही आपको जाना है जबरदस्ती। लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं। एक बच्चों को हम काउंसलिंग कर रहे थे एक बार, वो बोला कि हमको एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट। मैं बोला तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्यों आए? बोला हमको तो इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरे पिता माता को इंटरेस्ट। मैं बोला अपने पिता माता को भेज देना चाहिए था, फिर तुम क्यों आ गए? बोला हमको तो जबरदस्ती भेज दिया गया। तो ये होता है हमारे सोसाइटी। तो इसलिए गुरुकुल सिस्टम का इम्पोर्टेंस बहुत ही था हमारे सोसाइटी में। तो कृष्ण यहाँ बता रहे हैं
जो हमारा प्रिस्क्राइब ड्यूटी है उसको करना है, और प्रिस्क्राइब ड्यूटी को कैसे करना है, उसके साथ हमको कृष्ण के सेवा में लगे रहना है, भगवान के सेवा में लगा रहना है। मतलब ये हुआ कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में ही हमको हमारा ड्यूटी करनी चाहिए, कृष्ण भावना अमृत में ही हमारा कर्म करनी चाहिए, प्रिस्क्राइब ड्यूटी। ये नहीं कि हम छोड़ छाड़ के चले गए, जाके बैठ गए कहीं और सोच लिए हम सन्यास हो गए, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ स्ट्रेस दिए, सन्यास ऑर्डर लेने के लिए हमको बहुत प्यूरिफिकेशन चाहिए। बिना प्यूरिफिकेशन में कोई अगर सन्यास ऑर्डर में पहुंचता है वो ढोंग सन्यासी होता है। प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, बहुत ऑस्टेरिटी करना। हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी भी एक ऑस्टेरिटी है, उसको हम छोड़ के कभी नहीं कर सकता अपने आप को प्यूरिफाई। इसलिए प्रेस्क्राइब ड्यूटी में रहकर जो हम लोग कृष्ण के सेवा में लगे रहेंगे तो वो उच्चतर है देन हमारे प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ के अगर सन्यास ले लिए तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं कि पहला हमारा प्यूरिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वर्णाश्रम सिस्टम में रहकर हमारा प्यूरिफिकेशन पहले होना जरूरी है, क्योंकि हम लोग बद्ध हैं। हमारा जो स्वभाव है उसी स्वभाव में रहकर हमको प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को अडॉप्ट करना है। कृष्ण भावनामृत का जो प्रोसेस है उसको अडॉप्ट करना है, फिर हम लोग धीरे धीरे गृहस्थ से वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से संन्यास ऑर्डर तक जा सकते। इसलिए ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचनी चाहिए कि हम लोग तो गृहस्थ में हैं तो हम लोग ठीक ठाक कर रहे हैं, ये नहीं है। अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर हम लोग गृहस्थ आश्रम का रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारा प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वी कैन नॉट बी प्यूरिफाइड। हाँ, कोई भी वर्ण में हो डजंट मैटर, हम लोग कोई भी प्रेस्क्राइब ड्यूटी लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम गृहस्थ आश्रम में हो या फिर ब्रह्मचर्य आश्रम में हो, अगर हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं हो रहा है, नहीं कर रहे हैं, देन वी आर नॉट ऑन द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसलिए गृहस्थों का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गृहस्थ आश्रम में बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खाली ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम का लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाओ और इंद्रिय तृप्ति करो, ये नहीं लक्ष्य होना। जनरल यही टेंडेंसी है कलयुग में, सारे लोगों का ये टेंडेंसी है। क्या टेंडेंसी है? पैसा कमाओ, मौज करो, इंद्रिय तृप्ति करो, यही तो टेंडेंसी है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गृहस्थ जो है वो अदर जितना बाकी जितना आश्रम रहा सबके सपोर्ट सिस्टम है। इसलिए गृहस्थ को पहले तो ये सोचना चाहिए कि समाज कल्याण में कैसे करूं, और समाज कल्याण का एकमात्र मार्ग है कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार। ये एक समाज कल्याण का एकमात्र रास्ता है। तो इसलिए गृहस्थ आश्रम में रहकर हम लोग अगर समाज कल्याण का काम में नियोजित नहीं करें अपने आप को, देन हम लोग गृहस्थ आश्रम में कोई ऑस्टेरिटी नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट अंडर द पाथ ऑफ प्यूरिफिकेशन। इसलिए हम लोगों को कृष्ण भावनामृत को अपनाना होगा। जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर भी हम लोग भगवान की सेवा कर पाए, सारे जीवों का सेवा कर पाए, सारे भक्तों का सेवा कर पाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हर घर पे भगवान का स्थान होना चाहिए, भगवान का सेवा होना चाहिए। हर घर पे अतिथियों का सेवा होनी चाहिए। हर घर पे जितने भी जीव हैं उनका भी सेवा होना चाहिए। तो सारे जीवों का कैसे सेवा करेंगे? संकीर्तन यज्ञों के माध्यम से हम लोग सारे जीवों का सेवा कर सकते। ये बहुत बड़ा सेवा है। अगर हम कहीं संकीर्तन कर रहे हैं वहां पे सारा जीव इसका उपकार प्राप्त करेंगे,
इसका बेनिफिट प्राप्त करें। और हम लोगों को सारे जितने महात्माएं हैं, भक्त लोग हैं, उनके भी सेवा करनी चाहिए। ये हमारा जीवन का लक्ष्य होनी चाहिए गृहस्थ आश्रम। फिर गृहस्थ आश्रम में धीरे धीरे हम आगे जाएंगे, हमारा प्यूरिफिकेशन होगा, तो वानप्रस्थ आश्रम को अडॉप्ट करेंगे। वानप्रस्थ आश्रम में फिर हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है, हम लोगों को आगे चलकर फिर बहुत सारे जितने धाम है, सारे धाम को जाना है, वहां पे महात्माओं से सुनना है कथा, फिर अपने आप को और प्यूरिफाई करना है, फिर अपने आप को और प्यूरिफिकेशन करने के बाद फिर संन्यास अडॉप्ट लेना चाहिए। ये रूल्स एंड रेगुलेशन है वर्णाश्रम सिस्टम। तो इसलिए हमारा प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। कृष्ण बोल रहे हम लोग प्रेस्क्राइब ड्यूटी छोड़कर कभी भी हम लोग अपने आप को प्यूरिफाई नहीं कर पाएंगे। न कर्मणाम अनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते, कभी नहीं अचीव कर सकते। वी कैनॉट अचीव परफेक्शन इफ वी लीव आवर प्रेस्क्राइब ड्यूटी। बट प्रेस्क्राइब ड्यूटी क्या है उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस्क्राइब ड्यूटी ये नहीं है कि खाली पैसा कमाना और इंद्रिय तृप्ति करना, ये नहीं है प्रेस्क्राइब ड्यूटी। प्रेस्क्राइब ड्यूटी मीन्स जो शास्त्र, गुरु, साधु जो हम लोगों को आदेश देते हैं उसी हिसाब से हमारे जीवन को निर्वाह करना, वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं जो अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी में रहकर भी भगवान की सेवा में और कृष्ण भावनामृत में रहता है वो बुद्धि योग में है, वो एक सन्यासी से भी उच्चतम स्थान पर है। इसलिए प्रभुपाद एक वर्ष बता रहे हैं स्वल्पम अपयश्य धर्मश्य त्रायते महत्व। ये जो परफॉर्मेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस है ये हर वर्ण हर आश्रम में लागू है, इसको हम लोग कभी नहीं छोड़ सकते। हर वर्ण में वो डिवोशनल सर्विस कर सकते, हर आश्रम में भी डिवोशनल सर्विस करते अकॉर्डिंग टू आवर कैपेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू आवर गुण एंड कर्म। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रेस्क्राइब ड्यूटी को छोड़ना नहीं। जैसे अर्जुन का प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो है युद्ध करना, क्षत्रिय धर्म। युद्ध किस लिए करना है? खाली पीली ऐसे ही युद्ध नहीं करना है दूसरों को मारने के लिए। युद्ध किस लिए करना है? धर्म की स्थापना करने के लिए करना है। तो इसलिए वो उसका प्रेस्क्राइब ड्यूटी, तो अर्जुन के प्रेस्क्राइब ड्यूटी यही है, तो वो छोड़ के नहीं जा सकते उनको, वो प्रेस्क्राइब ड्यूटी उसको करना है उनको। तो कृष्ण वही बता रहे हैं, ये कर्म योग है। तो आगे भी और बताएंगे, हम लोग पढ़ेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आत्माराम प्रभु कहाँ चले गए क्या? आत्माराम प्रभु, हरे कृष्णा। तो सतीश प्रभु बोलिए। आत्माराम प्रभु आ गए? हाँ ठीक है, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी आज चर्चा हुआ जो है कि हमें जो है कि अपना सब कर्म छोड़कर नहीं धर्म के तरफ केवल कर्म से विमुख नहीं होना है। तो इसमें जो है भगवान जब उपदेश दे रहे थे अर्जुन को, तो अर्जुन जो है कि अपना जो गांडीव रख देता है कि हमको युद्ध नहीं करना है, तो उस समय भगवान उनको जो है कि ये शिक्षा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब गीता का सार बता दिए अर्जुन को, तो वो बोला कि इस सबसे बढ़िया तो ये है कि मैं प्रभु आपके सेवा में लग जाऊं, आपका चिंतन मनन और जो है कि पूरा भक्ति में लग जाऊं। क्यों ये जो है कि झूठ मूठ का जो है कि अपने ही लोगों को मारना है और हम जो है आपकी सेवा में लग जाते हैं। तब भगवान बताते हैं कर्म की महत्ता के बारे में। तो कर्म के बारे में बता रहे हैं भगवान। और जैसा बोले कि कर्म जो है, कर्म करना भी धर्म है
अपना कर्म करना भी धर्म है। तो पहले जो ये होता था कि आपने प्रभु जी बताया कि 4 तरह के जो है कि डिसाइड करते थे बच्चे जब गुरुकुल में जाते थे, तो उसका जो नेचर देखकर, बच्चों का नेचर देखकर डिसाइड करते थे कि ये किस गुण में है। तो 4 तरह के गुण होते थे कि पंडित है, कि क्षत्रिय है, कि वैश्य है या शूद्र है। ये 4 तरह के जो है कि कर्म को देख के बनाया जाता था, और ये नहीं कि बाय बर्थ जैसा आज बनाया जाता है कि जो जन्म जिसमें कुल में जन्म लिया, अब वो जो है जो जैसे वैश्य है तो वैश्य का बच्चा वैश्य ही है, या फिर जो है पंडित का बच्चा पंडित ही है। तो इस तरह से जो है कि बर्थ के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से जो है पहले डिसाइड होता था, जो कि बहुत अच्छा था। और जो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो जज करते थे कि हाँ ये इसमें जो है ये गुण है, इसमें ये गुण है, तो वो उस हिसाब से काम करेगा। लेकिन आज तो जो है कि ये सब खत्म हो गया है, ये सब का किसी को कोई ना जज करने वाला है, और ना जज है ना कल्प्रिट है, कुछ नहीं है। तो जो है कि जो अपने मर्जी से जो हो रहा है वही किए जा रहे हैं लोग। तो इससे जो है कि एक समाज में अव्यवस्थता टाइप का जो है कि बढ़ रहा है। और जैसे कोई शूद्र का बच्चा है, वो भी अगर जो है कि पंडित की तरह काम कर रहा है, तो आज भी लोग जो है कि नहीं प्रेफर करता है कि उससे जो है कि हम पूजा पाठ करवा लें। अभी भी नहीं होता है कि हम देख रहे हैं कि खोज करके पंडित लाया जाता है कोई पूजा पाठ करवाने के लिए, भले ही वो कितना ही ज्ञानी हो। तो जो है, और कभी कोई इस तरह का काम होगा, जैसे कोई मर गया या जानवर ही मर गया या कुछ तरह से, तो वो खोज के लाएगा कि कोई शूद्र जाति का है, तो इस तरह का जो है वो काम करेगा। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जो व्यवस्था है ये बाद में मनुष्य ने अपने हिसाब से बना लिया है। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। जो शूद्र का भी बच्चा है, वो अगर पंडित वाला काम कर रहा है, उसके पास नॉलेज है, तो वो भी पूजा पाठ करवा सकता है। और जो बहुत अच्छा बताया गया प्रभु जी, इसमें चर्चा हुआ आज जो है कि गृहस्थ को भी आश्रम बोला गया है। तो जो है 4 तरह का जो बताया गया आश्रम, जो है कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद संन्यास है। तो बिना सारा स्टेप किए हुए अगर हम जो है कि एक सीढ़ी से 10वां सीढ़ी पे डायरेक्ट छलांग लगाना चाहेंगे, तो ऑब्वियस है कि गिर पड़ेंगे। तो जो है यहाँ पर है कि कहने का यही तात्पर्य था कि बिना अपना हृदय का शुद्धि किए हुए डायरेक्ट संन्यास ग्रहण करने से भी सामाजिक उथल पुथल होता है, और जो है कि वो एक तरह का दिखावा मात्र ही हो जाता है कि हम संन्यास ग्रहण कर लिए हैं। तो हृदय का शुद्धि का मतलब क्या है कि हृदय का शुद्धि के बारे में जो है पहले भी चर्चा हुआ है कि किस प्रकार हम अपना हृदय को शुद्ध कर सकते हैं। बिना हृदय का शुद्ध किए हुए संन्यास धारण करना ठीक नहीं है। तो हृदय का शुद्धि का करने का क्या मतलब है कि हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, इसमें जो है अपने विषयों के प्रति जो है कि हमेशा चिंतन करने के कारण इसमें जो है कि बहुत मैल बैठ गया है। तो इतना मैल का परत बैठा हुआ है हमारे हृदय में, तो उसकी शुद्धि बहुत जरूरी है। तो उसकी शुद्धि के लिए पीछे जो अध्याय में हमने पढ़ा था, वहां पर बहुत अच्छा से बताया गया था कि जब तक हम लोग जो है कि अपना नाम रूप का जो है अग्नि अपने हृदय में नहीं जलाएंगे, वो जो है शुद्ध नहीं होने वाला है, वो मैल जो है जलने वाला नहीं है। तो मन का मैल धोने के लिए जो है भगवान का नाम हमको जो है चैंटिंग हमको करना है बहुत ज्यादा से ज्यादा। और जो ABCD का फॉर्मूला बताया गया है वही मेन है। उसी फॉर्मूला पर चलते हुए ही हम आगे, अगर कोई ABCD अच्छा से जान रहा है तो आगे अच्छा से इंग्लिश पढ़ पाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि पहले ABCD बहुत अच्छे से क्लियर करना है, और कर्म जो है कर्म से विमुख नहीं होना है। ABCD को ध्यान में रखते हुए कर्म करते जाइए। तो जब हृदय पूरा शुद्ध हो जाता है, तो जनरली पहले जो जैसे डिसाइड किया जाता होगा, पहले अगर मान लेते हैं कि आदमी का उम्र 100 वर्ष होता था,
तो 100 वर्ष जब उम्र होता था तो लगभग जो है 20-25 वर्ष जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहता था। और जो है उसके बाद जो है 25 वर्ष जो है कि नेक्स्ट 25 वर्ष से 50 वर्ष तक वो जो है अपना जो गृहस्थ आश्रम है उसको बहुत अच्छे से चलाता था। गृहस्थ को आश्रम बोला गया है, आश्रम इसलिए कि उसमें जो है कि अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके मन में भक्ति भाव जगा करके, मन में भक्ति रख करके ही हर कार्य करना है। तो अगर मन में भक्ति रख कर हम कार्य करते हैं तो हम जो है गृहस्थ आश्रम में भी संन्यास का भाव ले सकते हैं। तो ये चीज को बहुत बारीकी से देखना है। ये नहीं कि गृहस्थ आश्रम में हम खाली एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं तो ना कभी हमारा हृदय शुद्ध होगा और ना ही कभी हम संन्यास की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस का चीज है। तो धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करते करते मनुष्य का जैसे होता है ना कि तीसरा आंख खुल जाता है, तो ये एक प्रैक्टिस का चीज है कि प्रैक्टिस करते करते जब हम ये सोचेंगे कि हमेशा जो है कि अपना ही हम कल्याण नहीं करें, समाज के परोपकार के भावना से काम करें, जो है ये सारी चीजें जो है हम जो है इसी में कर सकते हैं जो गृहस्थ आश्रम है। अगर गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा तो फिर जो है पूरा सामाजिक उथल पुथल मच जाएगा। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम में हम प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जो रह रहा है, अगर कोई शुरू से ही संन्यास लिया हुआ है अपने उसके हिसाब से तो ठीक है। अगर जो है बीच में अगर है कि हम जो है कि हमारा मन कंट्रोल नहीं हुआ है और जो है कि हम पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं और संन्यास ग्रहण कर ले रहे हैं, तो फिर जो है कि यही हो जाता है कि ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, ना इस तरफ ना उस तरफ। तो जो ये भव सागर है इससे जो है कि हम पार नहीं पा पाएंगे। तो इसीलिए भव सागर को पार करने के लिए जो है कि उसको जो है ये हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हुए, पहले इसमें मन की शुद्धि को बहुत ध्यान में दिया गया है। तो इसमें बहुत एक लाइन मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें लिखा है कि हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। ये सीधा ही उसमें लिख दिया गया है। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो व्यक्ति भगवान की दिव्य सेवा में लगा हुआ है उसकी सेवा को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान उसकी भी सेवा को स्वीकार करते हैं, बट वो जो है सच्चे हृदय से होना चाहिए। अगर सच्चे हृदय से हम भगवान को कुछ भी सेवा कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। तो जो है कि जब हम देखते हैं जब पांचों पांडव और कुंती जो है इसमें वन में रहती है, भगवान आते हैं तो भगवान के उसको खाना देने के लिए मतलब भगवान उसके पास कुछ भी नहीं रहता है। तो जाके देखती है तो कहती है कि एक जो है एक चावल का दाना है प्रभु, अब और कुछ बचा नहीं है। तो वो एक चावल का दाना भी खाते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है कि एक बार जो है हम लोग को ऐसा ही ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पास जो भी है वो भगवान को हम अर्पण करें, सच्चे हृदय से अर्पण करें। ABCD का फॉर्मूला जो है वो सही से रखेंगे तभी जो है हमारा मन का शुद्धि होगा। मन का शुद्धि होने के बाद ही जो है हमको जो है वो गृहस्थ के बाद जो वर्ड है आश्रम वो तभी लगेगा जब है कि मन की शुद्धि होगी। नहीं तो गृहस्थ जीवन तो सबको जी रहे हैं ऑल टाइम जो है मैक्सिमम जगह देखते हैं सुबह उठते ही आज क्या बनेगा और आज हम क्या खाएंगे, ठीक है। और खाते खाते अगर बहुत कुछ हो गया तो अब हम कहाँ घूमने जाएंगे, हम जो है कि गोवा जाएंगे कि कहाँ जाएंगे कि शिमला जाएंगे कि मनाली जाएंगे। और उस टाइम में जो है थोड़ा जो है इंद्रियों के कंट्रोल में भी मतलब आदमी आ जाता है धीरे धीरे। प्रैक्टिस करते करते अगर ये हो जाएगा, मन में भक्ति भाव जग जाएगा तो ऑटोमेटिक हमको लगता है कि वो गोवा के जगह जगन्नाथ धाम हो जाएगा। तो जो है कि बस रिप्लेस करने का चीज है वो, आप जगन्नाथ धाम जाइए, द्वारिका जाइए, तो उस तरह का जो है वृंदावन जाइए, तो वृंदावन में जो है जाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये नेक्स्ट का स्टेप हुआ करता था जो वानप्रस्थ आश्रम होता था। वानप्रस्थ आश्रम में नेक्स्ट का स्टेप होता था
कि जब आदमी गृहस्थ आश्रम में रह जाता था तो तीसरा स्टेप में सब धामों की यात्रा करता था। मतलब हो सकता है ये 50 साल से 75 साल, एक हम अपना अनुमान लगा के कह रहे हैं, 50 से 75 साल में, और उसके बाद का स्टेप होता था सन्यास, ताकि सब कुछ आप घर का छोड़ चुके हैं पहले ही, जब वानप्रस्थ में वो प्रैक्टिस कर चुके हैं तब जाके सन्यास नेक्स्ट स्टेप होता था। तो इस तरह से प्रभु जी ये बताया गया कि अपने जो है मन को शुद्ध करने के बाद ही किसी को सन्यास ग्रहण करना चाहिए। सारा कर्म जो है भगवान को समर्पित करते हुए हमें अपना कर्म करना है, और हमेशा प्रभु को ध्यान में रखते हुए पहले अपने आप को हम ठीक करेंगे, और जो है तभी जो है कि आसपास के लोगों और समाज को ठीक करेंगे। तो ये बिल्कुल ही प्रैक्टिस का ही चीज है। तो वो प्रैक्टिस जो है कि जब तक हृदय में वो अग्नि नहीं जलेगा तब तक होगा नहीं, अग्नि तो जलाना ही पड़ेगा। भगवान के नाम का रूप, नाम रूपी अग्नि, उसी से ही सारा कल्याण होगा। तो वही है कि जो दिन है कि भगवान से कनेक्ट करने का एक ही पासवर्ड है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।